Good evening, ladies and gentlemen. My name is Suanshu Khurana, and on behalf of the Indian Express, I welcome you to the latest edition of Express E-Adda. Express Adda, which began 9 years ago, has been a hugely successful series of informal conversations with news and opinion makers. Since the COVID 19 lockdown began, we've seamlessly moved it online so that we can continue to engage in these vital and stimulating conversations. Our previous Addas have included former Chief Economic Advisor of India, Dr. Arvind Subramaniam, Director of AIMS, Dr. Randeep Guleria, and Union Minister Nitin Gadkari ji, among others. These have been quite well received. I'm sure today's session will also be interesting and informative as the ones before. Today's guest is Dr. Ramesh Pokhriyal, Union Minister of Education. Dr. Pokhriyal oversaw the drafting of the new policy in its crucial final stages and is at the center of this churn in the times when education is already adapting to a new normal in the wake of the COVID 19 pandemic. The former Uttarakhand Chief Minister, who's also a writer with over 75 books to his name, will be in conversation with National Opinion Editor Vandita Mishra and Ritika Chopra, Senior Assistant Editor, The Indian Express. Before I hand over the proceedings to Vandita and Ritika, I'd like to thank our title partner, Vivekananda Institute of Professional Studies, Wealth Partner Incred Wealth, Associate Partners Jindal Steel and Power, Airbus, and IAS Baba. Over to you, Vandita and Ritika. A very warm welcome to everyone. Namaskar, Pokhriyal ji. Namaskar. So these are extraordinary times, and we have an extraordinary guest with us. In the middle of a pandemic, he's come out with, the National Education Policy, which is only the third in India and the first in 34 years. And it's the first education policy of the 21st century. And that itself is an extraordinary achievement. But before we come to that, I'd like to begin by asking Pokhriyal ji something else. It's not very often that we have a minister with us who's also a poet. So Pokhriyal ji, आप कविता कहते हैं और मैं आपसे शुरुआत में यही पूछना चाहूँगी कि क्या पैंडेमिक में भी कविता कहते हैं, पैंडेमिक की कविता कहते हैं? कविता तो जीवन है, हर व्यक्ति एक कविता है। उसका जो भावनाएं हैं उसके शब्द हैं और जीवन को शब्दों में उतारते वो कविता होती है। तो मैं ये समझता हूँ ये तो सब कविता हैं, हर व्यक्ति के अंदर कविता है, हर व्यक्ति स्वयं कविता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि कविता जीवंत होती है और कविता दूसरों के लिए समर्पित होती है। कविता एक नए विजन के साथ पैदा होती है और दूर तक लोगों को लेकर के जाती है। मेरी जो ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें भी निश्चित कविता के अंश तो अपने आप आने स्वाभाविक ही हैं। इस जो नई नीति आई है ये हर दृष्टि से सभी तत्वों से युक्त है। इसलिए यदि आप मेरी कविता की बात कहते हैं तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि हर व्यक्ति की कविता इसमें समाई है। इस देश में इस नई शिक्षा नीति जिसकी आज आप चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं की कविता इसमें समाई है। इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों की कविताएं इसमें समाई हैं। इस देश के 1000 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का और उनके संकाय का इसमें समाहित है। इस देश में 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, उन सब की भावनाएं इसमें समाहित हैं। और यदि आप कहेंगे कि गांव तक तो 2.5 लाख से भी अधिक गांव तक हम पहुंचे हैं जिनसे हमने परामर्श किया है, तो वो भी इस कविता के साथ है, इस रचना के साथ है, इस अभियान के साथ हैं। और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश का भविष्य का निर्माण करने वाली ये महत्वपूर्ण आप जो भी रचना बोले, नीति बोले, उसको जो भी नाम दें, लेकिन इसमें जो शिक्षक है, जो शिक्षाविद है, उसकी भी महत्वपूर्ण 1.9 करोड़ से भी अधिक इस देश में अध्यापक है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को सुन करके भी लोग गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, जिसमें 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, जिसमें
1,09,00,000 से अधिक अध्यापक हैं और कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उतने यहाँ के छात्र छात्र हैं 33 करोड़ से भी अधिक। और इसलिए उन सब की भावनाएं, जनप्रतिनिधियों की भावनाएं, सरकारों की भावनाएं सब इसमें समाई हुई हैं। इसलिए इसकी खूबसूरती ऐसी है कि पूरे देश के लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से सराहा है। जी, हम लोग आपकी पॉलिसी की तो चर्चा करेंगे ही। तो सबसे पहले ये बताएं कि एक बीजेपी की गवर्नमेंट एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाती है और ये चार्ज उस पे नहीं लगता है कि ये भगवाकरण है। ये आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये इस पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारी चीजें कही गई हैं, कई क्रिटिसिज्म भी हैं और बहुत सी सराहना भी है, पर ये क्रिटिसिज्म नहीं हम लोगों को सुनने में आया और किसी ने प्रमुख नहीं हुआ कि इसमें भगवाकरण की बात है। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? मैं ये समझता हूं कि आखिर ये पूरे देश की पॉलिसी है। जैसे मैंने कहा कि ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री जी तक, और गांव से पार्लियामेंट तक, विधायक से लेकर सांसद तक और शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री गण तक, कौन सा क्षेत्र, चाहे शिक्षक है, चाहे शिक्षाविद है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे वो एनजीओ के लोग हैं, हम लोगों ने इस मसौदे को इतने व्यापक परामर्श, आपको खुशी होगी ये जान करके कि संभवतः ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार है, सबसे बड़ा परामर्श है पूरी दुनिया का। आज तक किसी भी नीति पर इतना बड़ा परामर्श शायद ही दुनिया में कहीं हुआ होगा। तो सबकी सहभागिता है। उसके बाद भी हमने पब्लिक डोमेन में डाला इसको, और 6-7-8 महीने तक, ताकि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे को पूछा ही नहीं गया। ये तो अपने आप ही 4, 6, 8, 10 लोगों की कमेटी ने जो चाहे तय कर दिया, देश पर थोप दिया। नहीं, ये देश की नीति है। हम देश के भविष्य के निर्माण के लिए, क्योंकि बच्चा परिवार का भविष्य है, मेरे देश का भविष्य है, और हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। मेरी हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा पूरी दुनिया का वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। ये हमारा उदार चरित्र रहा है, उदार विचार रहा है। इसलिए जो आपने कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, सब लोगों की सहभागिता, आज कोई ये नहीं कह सकता। पब्लिक डोमेन में डालने के बाद भी 2.25 लाख सुझाव आए, और उन सुझावों को कस्तूरी रंगन जी का मैं बहुत आभारी हूं, जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और तमाम सम्मानों से वो सम्मानित हैं। कितनी मेहनत उन्होंने की है। 2.25 लाख जो सुझाव आए, एक एक सुझाव का टोटली विश्लेषण किया गया, और उसके बाद तमाम मंथन के बाद स्कूली शिक्षा अलग और उच्च शिक्षा में 20-20 अलग अलग कमेटियां बना करके विशेषज्ञों की, कोई व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता मेरे पास सारे आंकड़े हैं कि कहां से कौन सा सुझाव आया। और हमने इस नीति में जो देश की प्रगति के लिए संभव है, चाहे ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, छात्र से लेकर स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा और अनुसंधान तक के लिए, हर व्यक्ति का जो भी सुंदर सुझाव था इस देश के हित में, और तभी हम लोग इतने मंथन के बाद इस अमृत को निकाल सकेंगे। अब आप ये बताइए, अमृत को कौन छोड़ना चाहेगा? और अमृत में जबरदस्ती कोई विष डालने की कोशिश करेगा तो लोग क्या उसको स्वीकार करेंगे? कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश के 99% लोगों ने बहुत मन से इसको स्वीकार किया। छात्रों ने कितनी खुशी खुशी से, क्योंकि पहली बार इस तरीके की नीति आ रही है जो उसको जमीन पर खड़े होकर पूरी आसमान और विश्व के शिखर तक पहुंचाने के लिए पूरी आजादी देती है। तो इसलिए जो आपके मन में ये शंका है, अब तो निशंक आप हो ही गई होंगी। जी मंत्री जी, मैं एक शिक्षा नीति पे सवाल पूछना चाहूंगी। नीति में कहा गया है कि शिक्षा का जो फंडिंग है, मतलब शिक्षा की जो वित्त पोषण है, वो जीडीपी का 6% होना चाहिए। अब ये आंकड़ा हमें काफी समय से सुनते, हम लोग ये आंकड़ा सुनते आ रहे हैं। जब 1968 की पॉलिसी में भी ये कहा गया था,
ये 1986 की पॉलिसी में भी कहा गया। अब कोरोना महामारी के चलते चलते एक फाइनेंशियल झटका भी लगा है सरकार को, तो ये जो एक आंकड़ा है ये 6% जीडीपी का, इसे सरकार लागू कैसे कर पाएगी, क्योंकि ये आंकड़ा पुराना है और अब क्या बदलेगा और आप इसे कैसे लागू करेंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने जो कहा है, क्योंकि बात सही है कि 68 हो और चाहे वो 86 हो, तब ये कहा गया था। लेकिन तब और अब में यदि आप जीडीपी को देखेंगे और टोटल ग्रोथ को देखेंगे तो लगातार बढ़ती रहती है। और ये जो शिक्षा है ये राज्यों का और केंद्र का संयुक्त रूप में ये विषय है। ये जो 6% जीडीपी है ये केवल केंद्र सरकार का नहीं है, ये राज्यों का और केंद्र मिल करके करते हैं हम। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि कुछ राज्यों की स्थिति ये है कि कुछ 2% हैं, तो कुछ 102% हैं। तो अभी हम लोग 4.234 के आसपास हैं। तो आखिर राज्यों को भी और हम मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कोई भी राज्य चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, वो उसका राज्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और हम ऐसा परिवेश बनाएंगे। मैं लगातार राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण से भी बात करता हूँ और मैं माननीय शिक्षा मंत्रियों से भी लगातार संवाद करता हूँ, और हमको भरोसा है जो इस नई शिक्षा नीति को लेकर के हम आए तो व्यापक परामर्श के बाद टोटली आए और सब लोगों की इसमें सहभागिता है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हों और 20 लाख करोड़ का पैकेज इस आत्मनिर्भर भारत की ओर देते हों, और अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि जब प्रधानमंत्री जी मेरे देश के सभी शीर्ष शिक्षाविदों के साथ 1000 विश्वविद्यालयों के कुलपति और 45,000 डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल और अध्यापक गण के साथ संवाद में आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं इच्छा शक्ति का ये गवर्नमेंट धनी है और आपके साथ इसको क्रियान्वित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इसको क्रियान्वयन में कुछ लोगों की अब नीति तो बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अच्छा देखते हैं कि क्रियान्वित कैसे होती है। तो उन्होंने कहा मैं चट्टान की तरह आप लोगों के साथ हूं। और फिर $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था की बात है, तो जिस दिन 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर जाएगा देश, उसी अनुरूप तो उसकी 6% बहुत होगा। और हम राज्यों के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे भरोसा है कि राज्य और हम मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री जी, आपने क्रियान्वयन की बात की और राज्यों की बात की, तो अब जैसे जो आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने बोला है कि मदर टंग में होना चाहिए क्लास 5 या क्लास 8 तक ना, उसका बहुत सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज एजुकेशनिस्ट ये मान चुके हैं कि बच्चा अगर अपनी भाषा में, मातृभाषा में पढ़ता है शुरू में, तो वो उसके लिए आगे जाके उसके लिए लाभदायक है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप भी जानते हैं कि स्टेट आफ्टर स्टेट ने इंग्लिश मीडियम की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। एक एक करके सब स्टेट्स ने अपने गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम करने की तरफ कदम बढ़ाया। उसको आप कैसे फिर टैकल करेंगे? जो आपने कहा है आपने तो बता ही दिया है। आपने बता दिया है कि विशेषज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे में सबसे ज्यादा सीखने की क्षमता होती है, और इसी बीच उसका मस्तिष्क का विकास होता है सर्वाधिक। जो मेरी कमेटी ने भी हमको संस्तुत किया था, उन्होंने भी कहा था कि लगभग 85% तक 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे का विकास होता है। और मुझे लगता है इतना खुशी है लोगों को, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इन प्रदेशों ने ये किया है, उनमें भी बहुत खुशी है, आम जनता में खुशी है कि अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको बच्चे को पढ़ने को मिलेगा।
किसी की भी अभिव्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बाहर कब निकलती है? जब वो अपनी भाषा में बोलता है। और इसलिए हम उसको, प्रारंभिक शिक्षा हमने 5 तक कहा है, कोई 8 तक करना चाहता है, कोई राज्य, कोई उसे आगे भी बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए पर छूट है। मंत्री जी, ये लोग तो दूसरी तरफ गए हैं, ये लोग तो दूसरी तरफ बढ़े हैं, ये अंग्रेजी की तरफ बढ़े हैं। चाहे नहीं, सुनिए, मैं जिस बात को मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों को बहुत भ्रम है, हम अंग्रेजी के तो कहीं विरोधी हैं ही नहीं। हमने कहीं ये कहा कि अंग्रेजी को रोको, लेकिन हमने ये कहा कि भारत के संविधान की जो अनुसूची 8 में हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनको सशक्त करो। ये भाषाएं कब जिंदी रहेंगी? यूनेस्को ने चिंता व्यक्त की कि भारत में हजारों भाषाएं लुप्त हो रही हैं और हमारी हजारों भाषाएं हैं, और यूनेस्को ने भी कहा है कि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। मैं आपको गिनाता हूं, ये अमेरिका, जापान, इजराइल, जर्मनी, ये विकसित देश हैं। ये किसकी भाषा में पढ़ाई कराते हैं? अपनी ही मातृभाषा में पढ़ाई कराते हैं। शीर्षस्थ 20 देश जो विकसित देश हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा लोग कभी कभी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। किसी भाषा पढ़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? अंग्रेजी भी पढ़िए ना, मना थोड़ी है, लेकिन प्रारंभिक भाषा में उस बच्चे के साथ न्याय हो सके, उसकी प्रतिभाओं के साथ न्याय हो सके। आपके साथ बहुत सारे लोग, बहुत मुझे मालूम है कि बच्चों के बीच बहुत काम करते हैं, वो बहुत महसूस करते होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने जब परामर्श किया तो लोगों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बच्चों के बीच समर्पित किया है, उनका भी यही निचोड़ आया कि हाँ, यदि बच्चे के साथ न्याय करना है, उसकी प्रतिभा का पूरा निखार लाना है, तो ये जरूरी है कि मातृभाषा में वो हो। और कौन राज्य ऐसा है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपने राज्य की भाषा नहीं पढ़ाना चाहता है? शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई होगा कि अपनी भाषा से जो विमुख होना चाहता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोग अपनी मातृभाषा में करें, लोगों में खुशी है। और उसके अलावा आप जो चाहे भाषा पढ़ाइए ना, उस बच्चे को 10 और भाषा पढ़ाने में क्या दिक्कत है? बच्चे में तो बहुत प्रतिभा है, आप जो चाहे उसको भाषा पढ़ाइए, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी, ये जो स्टेट्स मैंने गिनाए थे, इनमें यूपी भी है, बल्कि आपकी गवर्नमेंट उधर, आपकी आपने जो कहा है मैं बता देता हूं आपको। वो पेरेंट्स, मुझे लगता है कि इस नीति के आने के बाद मेरी तो स्वयं बातचीत हुई है सबसे। ये है क्या, स्पष्ट नीति के अभाव में ये परिस्थितियां कई बार पैदा होती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि सारे राज्यों ने इस बात को बहुत अच्छा माना और जनता ने ज्यादा अच्छा माना, क्योंकि जिसको लगता है अपनी भाषा से, जिसको प्यार है, स्नेह है, लगाव है, जिसकी जड़ें उस भाषा में जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए देश में एक तरफा माहौल है और खुशी का माहौल है। मंत्री जी, राज्यों से जुड़ा एक और सवाल है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो शिक्षा के लिए एक सीमित फंडिंग होती है, उसे भी समय पे खर्च नहीं किया जाता है। और इस समस्या के हल के लिए नीति में लिखा गया है कि हम देश की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या उच्चतर शिक्षा जो संस्थान हैं, और राज्य के जो संस्थान हैं, जो स्कूल्स हैं, उनका हम परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग करें, मतलब प्रदर्शन आधारित फंडिंग हो उनकी। क्या इस सुझाव से एक राज्य के साथ ये अन्याय तो ना हो जाए कि जो लो इनकम स्टेट्स हैं, मतलब जो कम आय वाले स्टेट्स हैं, उनके जो प्रदर्शन है वो ऑलरेडी काफी पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अब अगर जो हम फंडिंग को प्रदर्शन आधारित कर दे तो क्या वो और पिछड़ जाएंगे? क्योंकि उनका अभी जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन अब अगर जो हम फंडिंग को प्रदर्शन से लिंक करेंगे तो क्या उनकी वो और पिछड़ जाने का एक खतरा रह सकता है उन स्टेट्स के लिए? ऐसा नहीं है, ये तो किया ही इसलिए जा रहा है कि वो उठे। इसके पीछे भावना ही ये है जो आपने कहा है कि बहुत सारे राज्य हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, उनका जो GR है वो भी बहुत पीछे है, उनका जो स्तर है वो भी बहुत पीछे है। इसी के लिए तो ये किया जा रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा में फंडिंग होती है। अब जिन राज्यों में
हम जिस चीज के लिए पैसा देते हैं, यदि समय पर खर्च नहीं हो रहा है, यदि उसका उपयोग नहीं हो रहा है और कहने के बावजूद भी नहीं होगा और उनके पास पड़ा हुआ होगा, तो क्या उनको और अतिरिक्त धनराशि देना चाहिए? इसलिए राज्यों के साथ मिलकर के हमने कहा समय पर उसका उपयोग हो, जो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ही जो राशि दी जा रही है, जब वो सक्रिय तरीके से उसको उपयोग में लाएगा तो स्तर भी बढ़ेगा और वही उसका मूल्यांकन होगा। उसी मूल्यांकन के आधार पर फिर राज्य को ये भी डर रहेगा कि यदि हमने पैसा समय पर खर्च नहीं किया, जिस योजना के लिए आया है उस पर नहीं लगाया, अपने स्तर को नहीं बढ़ाया, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो राज्य भी कहीं ना कहीं इस कोशिश को करेंगे कि हाँ, हमको अच्छा करना है और ये नई शिक्षा नीति सबको साथ लेकर के चलने के महान लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई राज्य पीछे रहे ये हो ही नहीं सकता है। हम सब राज्यों को साथ लेकर के, जो पिछड़े राज्य हैं उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करके उसको आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, एक और प्रश्न भाषा के साथ जुड़ा है, वो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला है। तो इसको लेके जो दक्षिण भारत के स्टेट्स हैं, आप जानते हैं, उनमें कुछ तरीके की एंजाइटीज हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इसकी आड़ में एक हिंदी को थोपने वाली बात फिर से की जा रही है। उनके लिए इनको आप क्या कहेंगे? आपने पढ़ी शिक्षा नीति? जी। क्या कभी किसी भाषा को थोपा हमने? वो लोग तो बहुत खुश हैं। उन्होंने तो मुझे बधाई दी कि डॉक्टर निशंक, आप पहले से हमको भरोसा था कि आप किसी राज्य पर भाषा नहीं थोपेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार शुरू से कहा कि जो ये हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, जितनी पंजाबी है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाएं, हम इनको सशक्त करेंगे। इनकी अपनी खूबसूरती है, इनके अंदर अपना ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, और इसलिए हमने किसी पर भाषा को नहीं थोपा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने तो ये कहा है कि स्वतंत्र छोड़ दीजिए बच्चे को। आप बच्चे को क्यों रोकना चाहते हैं? वो 10 भाषाओं को पढ़े ना। हमने तो कोई भाषा नहीं थोपी। ये कहा है कि हाँ, एक भारतीय भाषा वो और अपने साथ ले ले। उदाहरण के लिए यदि तमिल का है, बगल में तेलुगु ले सकता है, मलयालम ले सकता है, जो भी चाहे एक भारतीय भाषा ले। उत्तर प्रदेश का है, वो मराठी ले सकता है, दूसरी भाषा ले सकता है। ये एक भारतीय भाषा लेने में कौन सा संकोच हो सकता है, किसको हो सकता है और क्यों हो सकता है? और इसलिए ये हमारे देश की 22 भारतीय भाषाएं हैं, किसी को भी ले ले, कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। लेकिन आप बच्चों को बंधन में क्यों डालना चाहते हैं? आप 2 ही भाषाओं की बात क्यों कर रहे हैं? आप 3 ही भाषाओं की बात कर। हमने तो मुक्त कर दिया उसको, उसकी इच्छा पर छोड़ दिया, बच्चे की इच्छा पर छोड़ दिया कि कौन सी भाषा पढ़ना चाहता है, पढ़े ना। तो इसलिए अब ये विवाद तो दूर दूर तक रह ही नहीं गया। इसमें भी बहुत खुशी है, लोगों को बहुत खुशी है। मंत्री जी, ये जो आत्मनिर्भर भारत का नारा लग रहा है बार बार, क्या आप हमारे ऑडियंस को ये समझा पाएंगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत आप किस तरह से बना पाएंगे, एंड ये शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि एक नए भारत के निर्माण की बात की है। कैसा भारत? जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत और एक भारत हो। इस नए भारत के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये रास्ता छोटा छोटा सा, ये इस तरीके के रास्ते दिए हैं। क्यों हो मेक इन जापान या मेक इन चाइना? क्यों नहीं भारत के अंदर मेक इन इंडिया हो सकता है पूरी दुनिया के लिए? डिजिटल इंडिया में, पूरी दुनिया में ये डिजिटल के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया क्यों नहीं हो सकता है? ये जो स्किल इंडिया है, स्किल हमारे यहाँ कौशल की कभी कोई कमी नहीं रही है। ये देश तो पूरी दुनिया का लीडर रहा है हमेशा। हमारे पास ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में हम कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं। तो उसकी जो स्किल है, उसको, उसके कौशल का विकास करेंगे
अब आपने देखा होगा हमारी नई शिक्षा नीति में जो आपने चर्चा की कि आप कैसे करेंगे। हमारी नई शिक्षा नीति ये कहती है कि कक्षा 6 से हम वोकेशनल लाएंगे, और वो जो व्यावसायिक शिक्षा है, एक तो शिक्षण कार्य है, शिक्षणेतर गतिविधियां हैं, चाहे वो खेल है, योग है, अन्य गतिविधियां हैं, वो कार्य, और तीसरा ये जो स्किल है उसका, इसको भी उसको समय समय पर किस तरीके से तीनों का समन्वय हो सकता है, और इंटर्नशिप के साथ इसको करेंगे। तो अब आप ये बताइए कि जब बच्चा बचपन से कुछ ना कुछ हुनर उसके अंदर जो है उसको पढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो शिक्षा, और शिक्षा के बाद जैसे वो स्कूली शिक्षा को करेगा तब तक वो कहीं ना कहीं, आज की तो डिग्री लेकर के कहाँ वो खड़ा होता है आपको भी मालूम है। लेकिन आज इस नई शिक्षा नीति आने के बाद वो बच्चा जब बाहर निकलेगा स्कूली शिक्षा से, तो एक योद्धा बन करके निकलेगा, उसको भटकने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने उत्पाद जो जिसमें उस मास्टरी शुरू कर रहा है वो स्कूली शिक्षा के ऊपर जाएगा, तो वो विषय में वो बिल्कुल मास्टर हो जाएगा। वो जमीन से जुड़ करके ये आत्मनिर्भर भारत के लिए जो उसके मन और मस्तिष्क में सोच होगी, जिसको वो नीचे से करता हुआ आ रहा है, एक तो वो आत्मनिर्भर भारत के लिए नींव का पत्थर बनेगा। दूसरा, हम लोगों ने, चाहे हमारे IIT हैं और चाहे हमारे NITs हैं, हम लोगों ने इन सारे जितने भी संस्थान हैं उद्योगों के साथ जोड़ करके इनका पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया है। अभी तक होता क्या था, जो उद्योगों को जरूरत है वो पढ़ाई नहीं करते थे, वो विषय नहीं होते थे, जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे उद्योगों को पता नहीं चलता था, उनको जरूरत नहीं थी। अब इनका व्यवस्थित उद्योगों के साथ मिलकर के जो पाठ्यक्रम तैयार होंगे और बच्चा 50% वो प्रैक्टिकल भी करता रहेगा, तो उस दिन यूनिट को निश्चित रूप में उस उद्योग को एक ऐसी प्रतिभाशाली छात्र मिलेगा कि वो पढ़ते पढ़ते उस यूनिट को शिखर पर लेकर के जाएगा, और उसको भी उसकी जरूरत होगी। और जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान बनाया, यदि 6 करोड़ लघु उद्योग हैं, और जिस तरीके से हमने युक्त 2 पोर्टल बनाया है, जितने भी हमारे छात्र हैं उनके आइडियाज एक प्लेटफॉर्म पर आए, और पूरा चाहे किसान है, चाहे गांव का है, चाहे उद्योगपति है, चाहे व्यापारी, उन आइडियाज को लेकर के वो अपने स्थान पर उसको करें। जिस दिन 6 करोड़ उद्योगों के, लघु उद्योगों के साथ वो जुड़ेगा, उस दिन काया पलट होगी, रोजगार भी मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत की भी आधारशिला खड़ी होगी। इस शिक्षा नीति में हर स्थान पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर भारत की और श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई देगी। मंत्री जी, मेरा इससे एक जुड़ा एक और, हम आत्मनिर्भरता से अगर जो चल के स्वायत्तता या ऑटोनॉमी पर आए, नीति में लिखा गया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थान जो हैं, जो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें ऑटोनॉमी या स्वायत्तता दी जाएगी। जो सरकारी संस्थान है उसमें IIMs को स्वायत्तता, उस स्तर की स्वायत्तता जो NEP जिस स्वायत्तता की बात करता है, उस स्तर की स्वायत्तता IIMs को मिल गई है। लेकिन अभी हाल ही में 1 महीने पहले सरकार ने IIMs को बोला कि आपके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जिन्होंने ये डिसीजन दिया कि आप 1 साल के MBA ऑफर कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है और ये किया नहीं जा सकता। मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में ही तैयार है इस स्तर की स्वायत्तता संस्थानों को देने के लिए, और अगर जो हाँ, सरकार क्या कदम उठा सकती है अगर जो इस ऑटोनॉमी या स्वायत्तता का मिसयूज या दुरुपयोग हो? आपने दोनों बात बोल दी है, और अच्छा कि आपने जो लास्ट में भी बोल दिया। आपको क्यों नहीं खुशी होती कि पहली बार ये मोदी सरकार है जिसने स्वायत्तता का बड़ा कदम उठाया है, और आज मेरे IIM बहुत शिखर पर पहुंच रहे हैं। आपने एक छोटा सा तो उदाहरण दिया, लेकिन मैं 50 उदाहरण, आपके पास समय होता तो मैं 5 घंटे IIM पर बोल सकता हूं कि मेरे IIM ने स्वायत्तता के बाद कितनी प्रगति की है, मेरे IIT ने कितनी प्रगति की है, शिखर की प्रगति की है। हम अंतरराष्ट्रीय फलक पर तेजी से बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं। स्वायत्तता का मतलब पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, इन दोनों का समन्वय होता है।
स्वायत्तता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकता। यदि आज कोई संस्थान ये बोले मुझे 3 महीने में डिग्री देनी है, तो क्या इजाजत दे देंगे आप? आखिर देश के अंदर एक नीति और नियामक तो होगा ना। आपको रास्ता दे रखा है, अब दौड़ो ना, आप कितना दौड़ सकते हो। लेकिन यदि 14 फीट की सड़क है और दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के लिए तो सड़क आपको दे रखी है कि दनल, लेकिन यदि बाईं ओर से दौड़े आप तो बाईं ओर की बजाय दाहिनी ओर से जबरदस्ती दौड़ना शुरू कर दें कि मेरे तो उल्टी दिशा में भी मैं जा सकता हूं, तो आपको चलने देगा कोई? और इसलिए चाहे कोई भी संस्था हो जिसको स्वायत्तता दी जाएगी, उसके भी मानक होते हैं, उसकी स्वायत्तता के मानक होते हैं। और इसलिए मुझे खुशी है कि हम 45,000 डिग्री कॉलेजों में से हमने 8,000 डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता दी है। हमने ये भी तय किया कि ये जो विश्वविद्यालय हैं, ये एक एक विश्वविद्यालय के अंदर 800 डिग्री कॉलेजों को संबद्धीकरण है। न्याय नहीं हो सकता। इसलिए मेरी नई शिक्षा नीति की जो कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि 300 से अधिक किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर कोई संबद्धता नहीं होगी। अब ये जो कॉलेज हैं, इनको हम मूल्यांकन के आधार पर जो ए है, बी है, उसको ए में लाएंगे, जो ए है उसको ए प्लस लाएंगे, जो ए प्लस है उसको ए प्लस प्लस लाएंगे, और उस दिन स्वायत्तता के आधार पर वो खड़ा होगा। जैसे जैसे वो स्वायत्तता के लिए सक्षम होता जाएगा, वैसे वैसे हम उसको स्वायत्तता दे सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल शंका करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत दृढ़ हैं और कर रहे हैं। हम बोल नहीं रहे हैं, हमने तो करना शुरू कर दिया है और उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। मंत्री जी, आपने स्वायत्तता की बात की और आपने खाली IIM, IIT की बात का नाम लिया। तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं देश में, हजारों जो हैं, और जो मोस्टली अभी डिक्लाइन में है, जो आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जो एक टाइम पे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता था, आज के टाइम में क्या उसका हाल है। ऐसे ही कितनी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो लाइफलाइन है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम की, और उनकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, और ये आपकी पॉलिसी में भी उनका ज्यादा जिक्र नहीं है। तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, ये आपको शायद 34 वर्षों से जिस नीति पर लोग चल रहे थे, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन लोग महसूस कर रहे हैं। जो देश के अंदर उत्सव का वातावरण है इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद, आप और हम सबको ये महसूस हो जाना चाहिए कि लोग क्या चाहते थे। एक दूसरा, ऐसा नहीं है हमारे विश्वविद्यालयों में, यदि आप उनके अंदर देखेंगे तो हमारे विश्वविद्यालयों ने शिखर को चूमा है। हमारे जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसने तब भी है और आज भी उसी गरिमा में है, आज भी उसी गरिमा में है, चाहे हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं। हाँ, परिस्थितियां कभी यदि बनती बिगड़ती हैं विश्वविद्यालयों के अंदर, तो उसको संभालने की गवर्नमेंट में क्षमता है। और ऐसा नहीं है कि ये विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय, और इनकी गरिमा कहीं गिर नहीं रही। हम अब इन विश्वविद्यालयों के लिए बाकायदा एक ऐसी संरचना, इसीलिए जिस बात को आपने कहा, हम उच्च शिक्षा आयोग लाए हैं। उच्च शिक्षा आयोग के तहत भी हमने अलग अलग प्रकार से 3-4 काउंसिल बनाई। एक छात्र के नीचे ये होंगे, एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा, तो एक उसको लागू करने का सुनिश्चितीकरण करेगा, एक बजट को देखेगा, तो चौथा मूल्यांकन को देखेगा। 4 काउंसिल बनाई है और वो एक ही छत के नीचे होंगे। तो जो आपको शंका है कि यदि किसी कोने पर अभी कमी होगी भी, तो ये जो नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने का जो प्रस्ताव है, ये उसका निश्चित रूप में समाधान है। जी, एक और चीज मंत्री जी, ये जो विश्वविद्यालयों की बात आपने कहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब आ सकती हैं, तो अब जब पहले यूपीए के टाइम में ये बात की गई थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की बात, तब तो बीजेपी ने अपोज किया था इसको। तो क्या बदल गया है, आज क्या बदला? आज ये बदला कि अब वो हमारी शर्तों पर आएंगे। तब ये था कि न जाने वो अपनी शर्तों पर आएंगे। बहुत अंतर है। आप किस मन से आना चाहते हैं और आप किस मन से बुलाना चाहते हैं, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। हम
शिक्षा को भारत केंद्रित विश्व के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और नवाचार के तहत। हमारे जो विदेशी जो टॉप 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को हमने बुलाने का मन बनाया है, उसके पीछे कारण है। हमारे 7.5 से लेकर 8 लाख तक बच्चे विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यदि आप मोटा मोटा आंकलन लगाएंगे तो इस देश का लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेश में जा रहा है। तो हो क्या रहा है, हमारी प्रतिभा भी और हमारा पैसा भी हमारे हाथ से जा रहा है। जो लोग विदेशों में जा रहे हैं फिर वो वहां अपने भविष्य को टटोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसी शिक्षा होती है जो इस देश में फिट ही नहीं बैठती उनकी, और कुछ वो सोचते हैं कि आप विदेश में चले गए तो यहाँ कुछ संभावनाओं को तलाशें। तो उस देश की प्रगति में उनका, यदि आप विश्व के कई देशों को देखेंगे जिसकी प्रगति में हिंदुस्तान के प्रतिभा का बहुत बड़ा योगदान है, तो उस प्रतिभा को हम क्यों नहीं रोकेंगे। हमारे तो पैसा और प्रतिभा दोनों जा रहे हैं। इसलिए जो 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को हम इधर लाएंगे, उनको हम अपनी शर्त पर वो करेंगे, उसके लिए आगे सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है, हमने अभी कहा स्टडी इन इंडिया, उसका अभियान चल रहा है। अभी तो 50,000 से भी अधिक विदेशी बच्चों का मेरे देश के अंदर नामांकन हो रहा है। और स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, बच्चों को, छात्रों को भी हम बोल रहे हैं, अब जाने की जरूरत नहीं है। जो तुमको वहां शिक्षा जिसके ले जा रहे हैं, हम समर्थ हैं, अब हम यहाँ पर देंगे आपको। यदि वो विश्वविद्यालय भी यहाँ आ जाएं और हम अपने संस्थानों को भी बहुत ताकत के साथ खड़ा करेंगे, तो मेरा बच्चा क्यों बाहर जाएगा। तो इस देश का पैसा भी बचेगा, इस देश की प्रतिभा भी बचेगी। और इसलिए जो हमने ज्ञान और ज्ञान प्लस, अभी आपको मालूम है कि हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 127 देशों के साथ हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्पार्क के तहत जहां अनुसंधान कर रहे हैं, वहां स्ट्राइड के तहत अंतर विषय शोधों को करने में भी जुटे हैं। इम्प्रिंट है, चाहे इम्प्रेस है, चाहे स्टार्स है, हम हर क्षेत्र में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यही देश के जो शीर्ष संस्थान में हम विश्व रैंकिंग में आज तक नहीं आते थे, उसका कारण ये था कि हम शोध और अनुसंधान में पीछे रहते थे। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शोध और अनुसंधान पर ज्यादा जोर देना चाहिए, और उन्होंने तो नारा ही दिया। आपको मालूम है, एक समय में लाल बहादुर शास्त्री जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब सीमाओं पर बहुत हम मुश्किलों पर थे। देश की सीमाएं खतरा मंडरा रहा था, और इधर देश के अंदर अन्न का संकट था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और पूरा देश इकट्ठा होकर के इन दोनों संकटों का देश ने मुकाबला किया था। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो उनको लगा कि अब जरूरत है, विज्ञान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारा अतीत में हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उसको अनुसंधान विज्ञान को उसको आगे हम नहीं बढ़ा पाए, तो उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया। और आपको मालूम है कि परमाणु परीक्षण जैसे बहुत इच्छा शक्ति से उन्होंने पूरी दुनिया में ये बता दिया था कि हिंदुस्तान पीछे नहीं है, और ये भी महाशक्ति के रूप में स्थापित अपने को करेगा। अब हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में इस देश ने पूरी दुनिया में अपना सिर ऊंचा किया है, गौरव का महसूस किया है। एक क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के मानकों में यदि आप पीछे 13 से पीछे की तुलना करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कभी इस पर भी विचार होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस हिंदुस्तान ने किन शिखर को चूमा है, पूरी दुनिया के मानकों को लेकर के पूरी दुनिया में लीडरशिप दी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब अनुसंधान की जरूरत है, तो उन्होंने जय अनुसंधान का नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। और जय अनुसंधान का मतलब, अब हम अनुसंधान NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करके एक शोध की संस्कृति को हम इस देश के अंदर खड़ा करेंगे। और इसलिए हम जो हमारी कमजोरी थी उसको भी हम पूरी ताकत के साथ तो करेंगे। हम ज्ञान में बाहर की फैकल्टी को लाएंगे। हमने ज्ञान प्लस शुरू किया है, हमारी फैकल्टी भी दुनिया को पढ़ाने के लिए जाएंगी। अभी आपको खुशी होगी इस बात की
कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक छात्र हिंदुस्तान के IITs में शोध और अनुसंधान के लिए आ रहे हैं। MOU हो गया। अभी यूनेस्को में हम लोग पीछे के समय थे, पूरी दुनिया के देश हिंदुस्तान में आकर के अब अध्ययन करना चाहते हैं। हिंदुस्तान बदलता हुआ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अब ताकतवर हिंदुस्तान है, वजनदार हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान को कोई कमजोर नहीं आंक सकता है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं, हमको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमारा बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। और यदि वो विदेशी विश्वविद्यालय शीर्ष विश्वविद्यालय, उनके साथ भी हम बैठ करके तय करेंगे, वो हमारी शर्तों पर ही आएंगे। इसलिए जो ये निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है। मंत्री जी, इससे एक छोटा सा जुड़ा हुआ सवाल है कि जो पुराना प्रस्ताव था विश्वविद्यालय को यहाँ भारत में लाने का, तब उस प्रस्ताव की ये आलोचना हुई थी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के आने के बाद हमारी उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन का लैंडस्केप, रूपरेखा एकदम बदल जाएगी। हो सकता है कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे सरकारी जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है उनके टीचर्स हायर कर ले, उच्चतर शिक्षा भी शायद बच्चों के लिए महंगी हो जाएगी। ये चिंताएं तब व्यक्त की गई थी। ये सरकार इन चिंताओं का क्या समाधान कर सकती है? ये कौन कर रहा है चिंता? जब मैं उसको जानना चाह रहा हूँ, कौन चिंता कर रहे हैं? ये जब पुराना प्रस्ताव क्या जिस आंकड़ा को मैंने दिया है कि यहाँ से दुनिया में जा रहा है 7.5-8 लाख बच्चा, और वो कई गुना ज्यादा पैसा दे करके जा रहा है, मेरे देश का पैसा जा रहा है। यदि वो अपने घर पर पढ़ेगा तो महंगी हो जाएगी शिक्षा। ये कौन विद्वान ऐसा बोल रहा है? दूसरी बात, फैकल्टी का विषय है, वो अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होगी ना, हम अपनी फैकल्टी को खड़ा करें। हम कमजोर नहीं है, हमारी फैकल्टी बहुत ताकत के साथ, और उसको लगातार जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमने लीप प्रोग्राम हो चाहे अर्पित प्रोग्राम हो, हम अपनी फैकल्टी को ताकतवर बनाना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लगातार ये विजन रहा है कि हमारा अध्यापक कितना सशक्त होना चाहिए, वो पूरी दुनिया में पढ़ाने के लिए जा सके, और हम ऐसा करेंगे, और हम ऐसा कर रहे हैं। बोल नहीं रहे, हम कर रहे हैं, और हम अच्छा रिजल्ट देंगे। मंत्री जी, जब भी पहले बात हुई है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज यहाँ आएंगी, तो कभी ऐसा उन्होंने कोई एंथुजियाज्म नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं लगा है हमको कि जो टॉप 10 या टॉप 20 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में प्रवेश करना चाहती हैं। तो आप ऐसा कौन सा उनको आप इनविटेशन एक नया देंगे जिससे आपको लगता है वो आने को राजी होंगे? क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि वो लोग आने की होड़ में है। हमें मिन्नत की जरूरत नहीं है। हमारी जो नीति है उसमें हमारी में आकर्षकता है, और हम मिल करके, जैसे मैंने अभी कहा कि स्ट्राइड के तहत हम दुनिया के शीर्ष 127 देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप भारत को कम मत आंकिए। ये अभी तो हिंदुस्तान की धरती पूरी दुनिया की ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है, महाशक्ति बनेगी ज्ञान की, और उस दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और इसलिए दुनिया के विश्वविद्यालय भी आने को तैयार होंगे, दुनिया का छात्र भी आने को तैयार होगा, और यहाँ का जो छात्र है, यहाँ का जो अध्यापक है, यहाँ की जो शिक्षा है, उसकी गुणवत्ता बढ़ा करके हम पूरी दुनिया को ये महसूस कराएंगे कि हाँ, भारत में ताकत है, शक्ति है, और वो अपनी शक्ति का जो पूरी दुनिया में अपनी शक्ति को बिखेर सकता है। उसकी सुगंध को, जो हम जिस क्षेत्र में हमेशा ही शिखर पर रहे हैं, वो शिखर पर जाने के लिए ये नई शिक्षा नीति आई है। दूसरी बात जो कही जाती है विश्वविद्यालय को लेके मंत्री जी, वो ये है कि आपने जैसे अब एक आप नया रेगुलेटर की बात कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक रेगुलेटर हो, 2 हो, उसकी कितनी पावर्स हो, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है यूनिवर्सिटी को, उसमें चाहे अपॉइंटमेंट्स की प्रोसेस में हो या करिकुलम की प्रोसेस में हो, तो वो जो इकोसिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, जब तक गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करने का जो रुख है उसको वो नहीं करेगी, पीछे नहीं करेगी, पीछे एक स्टेप नहीं लेगी, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी, चाहे आप कोई रेगुलेटर नया। मैं तो 1 साल से भी ज्यादा इस मंत्रालय को देखते आ रहा हूं मैं। मुझे तो कहीं नहीं लगा कि किसी पर कोई अंकुश है। अब यदि आपको पदों का सृजन करके, आप यदि किसी विश्वविद्यालय की कुलपति हैं और आपको पदों का सृजन करके दिया हुआ है कि आप करिए, नियुक्त करिए, तो किसने मना कर दिया? ये तो उल्टा कर रहे हैं कि आप खाली पदों को मत छोड़िए, अब जल्दी से जल्दी भरिए। उनकी शैक्षणिक तरीके से भी उनकी स्वायत्तता है, कहाँ दिक्कत आ रही है? और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत खुल करके बोला है
कि आप करो, क्या कर सकते हो, मैं साथ में हूं। और मैं शिक्षा मंत्री, कल भारत के राष्ट्रपति जी ने भी अब अधिसूचना जारी करके विधिवत आज हम शिक्षा मंत्री के रूप में आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूं, मैं भी लगातार उनको अनुरोध करता रहता हूं। तो ये लोगों ने बना रखा माहौल, ये माहौल भी कुछ लोगों ने बना रखा है और गलत तरीके से बना रखा है। इस माहौल को भी काउंटर करने की जरूरत है। अभी सब स्वतंत्र हैं, उनको ताकत दी हुई है, वो अपनी ताकत का उपयोग करें। मेरे सामने तो अभी तक एक भी उदाहरण नहीं आया, 1.25 साल तो मुझको हो गए हैं। आपके सामने कोई उदाहरण होगा तो अलग से जरूर मुझे बताइए। मंत्री जी, अब हम थोड़े से ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे। पहला सवाल है रोनी स्क्रूवाला अपग्रेड से हैं और आकाश सचदेव फाउंडेशन होल्डिंग से हैं। उनका सवाल रिकॉर्डेड है। इफ वी कैन प्लीज प्ले दैट। Honorable Minister, it's a pleasure to see you here on the Express Adda. I'm Ronnie Screwala from Upgrad. Firstly, I just want to congratulate you on the very, very strong vision for what I would call globalization, accreditation, and digitization coming out in the new education policy. Even allowing the top 100 universities to offer online programs is, I think, a landmark decision, and I compliment you for that. Overall, I think our challenge in India is that we need to increase almost 30 million seats in higher education, and therefore the right mix of blended learning with offline and online, and specifically online, is the only way that can really push this. And again, I think the education policy addresses that with a great sense of urgency on that. I think we all know that in this decade itself, 1 out of every 5 people in the world in the working professional category will be an Indian or will come out of India. That puts a great onus on all of us. And therefore, it couldn't be more timely for this education policy. And there, I do believe that actually we have a phenomenal chance in India to make this what I would call the knowledge economy of the world coming out of India. And I think with yours and the private and the government and all of them, we'll be able to really put this in good stead. Lastly, my only strong appeal would be, this is a very important time to build mutual trust and mutual respect between all the constituents, the government of India, the government, the state governments, the regulatory bodies, the universities and colleges, and the tech enablers and the people who are looking at the future-proofing the education system. One more last point. Separate from our upgrade, we also work in the not-for-profit space and have a large foundation where we work with 1,200 schools and 800 Anganwadis in rural Maharashtra. And I do believe, again, this new policy and the vision of you and the government is going to be life-changing for many, many, many getting into the education system. Thank you very much, and I look forward to hearing your interaction today. I am Akash Sachdev, Managing Director of Foundation Holdings. Foundation Holdings is an investment firm focused on healthcare and education. My question to you this evening is, should the government look at leveraging the PPP model to ensure last mile reach of the online learning platforms in the country's hinterlands? Thank you. मुझे लगता है कि जी ये जो वैश्वीकरण की और डिजिटल शिक्षा के बारे में कहा है और ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में कहा है, और मैंने काफी कुछ तो आपको अभी चर्चा की। जो डिजिटल शिक्षा है उसमें भी हम लोगों ने बाकायदा पीपीपी मोड वाला भी मैं अभी बताता हूं, और जो अभी हमारा आपको तो मालूम है कि ये का ये पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट आया, और कोरोना के महासंकट ने छात्रों को भी सुरक्षा की दृष्टि से घर पर कैद कर दिया। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान पूरी दुनिया का शायद पहला देश ऐसा होगा जिसने 33 करोड़ छात्रों तक पहुंच करने की अचानक आए इस संकट का मुकाबला किया, इस चुनौती का मुकाबला किया, और हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है। अभी उस ऑनलाइन शिक्षा में तमाम प्रकार की कठिनाइयां आई। हम लोगों ने स्वयं प्रभा, ई पाठशाला और दीक्षा, इन सब के माध्यम से हम लोगों ने वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की, भेजने की कोशिश की है। जो स्वयं प्रभा है हमारे, उसमें 32 चैनल है हमारे जो 24 घंटे होंगे। जिन बच्चों के पास, क्योंकि लोगों को ये आशंका थी और परिस्थितियां भी थी कि बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है,
इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उन बच्चों को जो अंतिम छोर में बैठे रहने वाला बच्चा है उसको किस तरीके से हम उस तक पहुंच करेंगे। तो हमने ये जो 32 चैनलों पर, जो टाटा स्काई पर, डिश टीवी पर होगा और विभिन्न माध्यमों से उस टीवी पर उसको पाठ्यक्रम हम देंगे, कुछ जगह रेडियो के माध्यम से जाएंगे, लेकिन हम स्वयं, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर ऑनलाइन शिक्षा है। हमारा स्वयं प्रभा 32 चैनल हैं जो 24 घंटे चलेंगे, वो भी हमारे पास बहुत बड़ी निधि है। हमारे पास ई पाठशाला है जिसमें 15 भाषाओं में सारे पाठ्यक्रम तैयार हैं, और हमारे पास नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसपे 4.5 करोड़ से भी अधिक ई कंटेंट हैं, जिसमें वीडियो हैं, ऑडियो हैं। और इसलिए अभी हम लोगों ने, जैसे कि आपने बताया भी, कि हम लोगों ने 100 टॉप की जो विश्वविद्यालय हमारे, चाहे उसमें सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, NIRF में जो 1000 विश्वविद्यालय में टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए हमने सुनिश्चित किया है। हमने जो पहले 20% ऑनलाइन करते थे उसको 40% तक किया है। अभी PM ई विद्या के तहत हम लोगों ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म और 1 क्लास 1 चैनल, इसको हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमने विद्या, जो अभी PPP के आकाश जी जिस बात को कर रहे थे, हमने विद्यादान 1, विद्यादान 2 किया। हमने लोगों से अपेक्षा की, जो विशेषज्ञ थे, अध्यापक थे, कंपनियां थी, कि आप विद्यादान क्या कर सकते हैं, आकर्षक पाठ्यक्रम हमको आप दीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि विद्यादान 1 के अभियान में और विद्यादान 2 के अभियान में लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से पाठ्यक्रम को दिया है हमको। हम लोगों के साथ मिलकर इसको और अच्छा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो ऑनलाइन शिक्षा है हमारी, वो सशक्त हो रही है, वो समृद्ध हो रही है, और शायद दुनिया में पहला देश होगा जो 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन की इजाजत दे रहा है। ये दुनिया का पहला देश है हमारा, और इसलिए ये जो हम समन्वय करेंगे केंद्र, प्रदेश और शिक्षा जगत के लोगों से बेहतर समन्वय करके हम इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और इसको वैश्विकीकरण में अभी भी हमको, हमारे स्वयं पोर्टल पर बहुत सारे देशों के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उसको और सशक्त कर रहे हैं। इस आपदा के बाद तो एक चुनौती के रूप में हमने अवसरों में उसको तब्दील किया, और निश्चित रूप में इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक ये PPP मोड की बात है, अभी जो हमने जो नेशनल स्तर पर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो डिजिटल फोरम बनाया हमने, जो नेशनल स्तर पर हम लोगों ने इसी नई शिक्षा नीति के NETF एक ऐसी फोरम बना रहे हैं जिसमें प्रौद्योगिकी पूरी ताकत के साथ उसका भरपूर हम उपयोग नीचे तक कर सकते हैं, शिखर तक कर सकते हैं, और उसके लिए हम वातावरण बना रहे हैं। उसमें लोगों को भी हम सहभागिता करेंगे, राज्यों की भी सहभागिता करेंगे, और इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। Rukmini Banerjee from Pratham would like to ask a question. Ma'am, please go ahead. नमस्कार सर, मैं आपका ध्यान प्राथमिक शिक्षा की तरफ ले जाना चाहती हूँ कि इस साल पूरे देश में करोड़ों बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल कब खुलेगा। अब मान के चलिए कभी ना कभी तो जरूर हमारी पाठशालाएं खुलेंगी। जब खुलेंगी तो आपकी तरफ से आप अभिभावकों को, बच्चों को और शिक्षकों को क्या संदेश देंगे? रुक्मणी जी, पहले तो मुझे आपको धन्यवाद देना है। मैंने आपके बहुत खूबसूरत लेख को मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने आपको टेलीफोन पर भी बात की थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका पूरा जीवन बच्चों के बीच समर्पित होकर के आप जैसे लोगों की, आप हमारी निधि हैं, और बच्चों के बीच जिस तरीके से आप काम करती हैं मुझे खुशी है, और इसीलिए मैंने टेलीफोन पर भी आपको बात की और मैंने आपकी बातों को बांटा।
और दूसरी चीज कि आपने कितना खूबसूरत लेख लिखा है, उसकी बड़ी चर्चा रही। कई लोगों ने मुझे भी टेलीफोन किए कि रुक्मणी जी का बहुत ही अच्छा लेख आया है और ये परिवेश बना है। रुक्मणी जी, आपको मालूम है कि जो बच्चा है वो किसी भी माँ बाप परिवार का सबसे प्यारा होता है और कई बार अभिभावक क्या है, पहले तो बड़े बच्चे हों, बड़े बच्चों भी कोई रिस्क लेना। अभी आपने देखा कि जेईई और नीट की परीक्षा हमने 2-2 महीने पीछे भी की, लेकिन उसके बाद भी छात्र कह रहा है हम कैसे करके करें, और सब की है ये परिस्थितियां हैं। हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा दूसरा है। हम स्कूलों को किस चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे, अभी इस पे हम लगातार व्यापक विचार विमर्श भी करें। आपने देखा होगा हमने बच्चे को बिल्कुल छोड़ा नहीं, कभी हम उसको मनोदर्पण के लिए करते हैं, कभी आप कोई अभियान दे देते हैं। बच्चे को और उसके अभिभावक को, अध्यापक और अभिभावक ने दोनों ने मिलकर के इन 33 करोड़ छात्र छात्राओं को बचाया है, रोका है। अन्यथा क्या स्थिति होती है आप कल्पना कर सकते हैं। और हम लगातार इसको बातचीत कर रहे हैं। हमने परीक्षाओं को किस तरीके से आयोजित किया, फिर किस तरीके से उनको आगे लाई हैं। अभी हम गृह मंत्रालय के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ लगातार परामर्श कर रहे हैं। जब जिस राज्य में कैसी स्थिति आती है, फिर राज्यों के साथ परामर्श करके वो क्या चाहते हैं और वो अभिभावकों के साथ, इसलिए मैं सभी राज्यों के माननीय शिक्षा मंत्रियों के साथ मेरा लगातार संवाद होता है और वो मैं कोशिश करता हूं। आपने पीछे के दिनों में देखा होगा कि मैं सीधे 33 करोड़ अभिभावकों के साथ भी संवाद करता हूं, तो मैं 1 करोड़ अध्यापकों के साथ भी संवाद करता हूं, तो मैं अपने छात्रों के साथ भी संवाद करता हूं। तो जब जैसे जैसी परिस्थिति आएगी उसी ढंग से हम देखेंगे और देख करके हम गृह मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, दोनों का परामर्श करके हम उन राज्यों के साथ ये आशा करेंगे कि पहले बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और उसके बाद वो स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलें। और इसके लिए थोड़ा सा भी और प्रतीक्षा रुक्मणी जी हमको करनी पड़ेगी। अगला सवाल डॉक्टर विद्या जो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से हैं वो पूछेंगे। डॉक्टर विद्या प्लीज गो अहेड। नमस्कार सर। नमस्कार विद्या जी। सर आपने जो अभी कहा कि 100 जो टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है फॉरेन की वो यहाँ आएगी, लेकिन वो मुझे ऐसे लगता है कि वो कोलैबोरेशन मोड से ही आएगी पहले, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप अ लार्ज कैंपस। तो जब कोलैबोरेशन करेगी तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमारे जैसी है या मणिपाल है या बिट्स पिलानी है, हम सब जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनके साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ कोलैबोरेशंस हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्ड डीम्ड है वो निकलना चाहिए, और आपने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा भी है कि अभी सबको यूनिवर्सिटीज ही बोलेंगे, क्योंकि ये डीम्ड शब्द जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे माना नहीं जाता। उनको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी हो या नहीं हो, ये डीम्ड क्या होता है। कहीं भी वर्ल्ड में डीम्ड ये शब्द का उल्लेख नहीं होता। तो फिर ये अभी आप सारे यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, ये शब्द कब निकला जाएगा, और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ज्यादा से ज्यादा जो होने वाली है आगे, तो इसके लिए ये करना मुमकिन है सर, मुझे ऐसा लगता है। विद्या, आप तो बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और आपने तो असंभव को संभव आपने भी किया है। तो मुश्किल तो कभी कुछ चीज कभी भी नहीं होती है। यदि लक्ष्य ठीक है और उसके पीछे भावनाएं ठीक हैं और अपने देश को लेकर के, अपनी पीढ़ी को लेकर के, अपनी जड़ों को लेकर के, अपने मन और अपने विचारों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर खड़े होने का जो ताकत चाहिए, दम चाहिए, उसके लिए मन भी चाहिए और फिर उसके लिए संकल्प भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मुझे भरोसा है कि मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल कामों को भी सहज तरीके से समाधित किया है। ये अच्छे से होगा, जब भी होगा आपके साथ बैठेंगे। जब अभी उच्चतर शिक्षा आयोग जब बनेगा और उसकी जो नीतियों को सुनिश्चित करेंगे, हम आयोग बनाएंगे, फिर बैठ करके, ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ होने वाला है, हम करेंगे। और लेकिन ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएंगे,
हम तो तेजी से आधे तो काम तो हमने इस नई शिक्षा नीति के चालू कर दिए। हम लोगों ने नीति नहीं बनाई, उसका रास्ता भी साथ साथ में तैयार कर रखा है। और इसलिए इसको हम करेंगे, लेकिन ये इसको हम अपनी शर्तों पर करेंगे, अपने देश की शर्तों पर करेंगे, अपने देश के संस्थानों के साथ मिलकर के बैठ करके उसका आगे उसको बढ़ाएंगे। हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं को अब ताकत ही मिलने वाली है, वो शिखर की वो दौड़ने वाले हैं और दौड़ेंगे, वो बढ़ेंगे, क्योंकि हम इस देश को जब हमने तय किया है कि भारत विश्व की ज्ञान की महाशक्ति बनेगा, तो इस महाशक्ति बनने में इन सारे संस्थानों का योगदान होगा। जहां तक आपने डीम्ड विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग किया है, आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, इस दिशा में सब समाधान होगा। अभी गणेश एन देवी जी हैं, ही इज अ लिंग्विस्ट एंड कल्चरल एक्टिविस्ट। उनका सवाल रिकॉर्डेड है, वील प्ले दैट एंड वील ट्राई एंड कनेक्ट विद आशीष अगेन। आपसे बहुत नम्रता से पूछना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा ये वाइडली ओपन ऑप्शन आपकी पॉलिसी में, नए पॉलिसी में है। मैं भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ पूरी जिंदगी और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि संस्कृत ये इस समय लिविंग लैंग्वेज नहीं है। तो जो संस्कृत ऑप्शन आपने ओपन किया है, उसकी जगह देश के हित में संविधान की शिक्षा, ये ऑप्शन ज्यादा वाइडली ओपन करते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संविधान अभी भी कुछ हद तक जिंदा है। तो वो कैसे होता? मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो संस्कृत है उसको एक भाषा के रूप में देखा गया। और आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जो देश के संविधान में जो भारत की 22 भाषाएं हैं, वो संविधान ये कहता है इनको आप सशक्त करिए, इनका समृद्ध करिए, इनको आप मरने मत दीजिए, इनके अंदर की जीवंतता को और मुखरता से आगे लाइए। और हम यही कर रहे हैं। हमारे लिए संस्कृत एक भाषा है, लेकिन आपको तो मालूम है कि संस्कृत एक भाषा जरूर है, लेकिन संस्कृत ज्ञान का एक भंडार भी है, विज्ञान का भंडार है। आज दुनिया की यदि 250 विश्वविद्यालयों में ये संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो क्यों पढ़ाई जा रही है? मैं ये समझता हूं कि अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, बेल्जियम है, ब्रिटेन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान, इंग्लैंड सहित तमाम देशों में संस्कृत तेजी से पढ़ाई जा रही है। दुनिया का कौन शीर्ष विश्वविद्यालय है, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया है, चाहे शिकागो यूनिवर्सिटी है, चाहे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, और जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर आज संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है संस्कृत को कि संस्कृत के अंदर जो आज आयुर्वेद को लो, आयुषो वेदा आयुर्वेदा है, वो आयुर्वेद जो चरक ऋषि की जो संहिता है वो संस्कृत में है। जो जिस योग को आज पूरी दुनिया मान रही है, उस योग के जो पतंजलि हैं, वो पतंजलि योग संस्कृत में है। जो सुश्रुत है, जो शल्य चिकित्सा का जनक पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है। मैं ये समझता हूं कि आर्यभट्ट जो महान ज्योतिषी रहा है, उसके ग्रंथ किस चीज में है? बारामिहिर जो भूवैज्ञानिक और गणित का पारदर्शी रहा है, उसके ग्रंथ किस भाषा में है? महावीराचार्य जो बीज गणित का विशेषज्ञ रहा है, दुनिया का बौधायन रहा है, आचार्य कणाद रहे हैं, जिन्होंने परमाणु संरचना पर प्रकाश डाला, वो किस भाषा में है? और इसलिए चाहे भास्कराचार्य जिस वैज्ञानिक को पूरी दुनिया मानती है, उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है? चाहे पिंगल है, वो किस भाषा में? इसलिए मेरा ये कहना है, ये परिवेश अब बदलना है। इसीलिए हमने ये कहा है, अतीत को साथ लेकर वर्तमान से जोड़ना और वर्तमान को विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार के साथ विश्व के शिखर पर लेकर के जाना। और इसलिए ये भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी, लेकिन जो मेरे देश की संविधान के अनुसूची 8 में जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, इनको हम सशक्त करेंगे
और ये जो संस्कृत में पूरी दुनिया के जो छात्र हैं वो छात्र इसलिए संस्कृत को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा पर है। हमने स्वतंत्र, कोई किसी भी भाषा को ले सकता है, जिसकी जो इच्छा वो उस भाषा को ले। हमने एक भाषा किसी पर थोपी नहीं है, यही इसकी खूबसूरती है। जिसको लगता है कि जिसको उसको ज्ञान और विज्ञान अनुसंधान मिल सकता है, वो उसमें स्वतंत्र किया है, बांधा नहीं है। पहली बार हुआ है ऐसा। इसलिए जो लोग इस तरीके का भी परिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं, पहले थोड़ा सा पढ़ो तो सही, जानो तो सही। तत्काल प्रतिक्रिया करने से थोड़ी काम चलेगा। ये हिंदुस्तान है, हम सबको साथ लेकर के चलना है। हमने नई शिक्षा नीति बड़े व्यापक पैमाने पर परामर्श इसीलिए किया है, और इसलिए भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। संस्कृत भी एक भाषा के रूप में होगी, लेकिन संस्कृत के अंदर जो ज्ञान विज्ञान समय है, जो आज जर्मनी से लेकर पूरी दुनिया उन ग्रंथों को पढ़ रही है, मेरा देश क्यों नहीं उन ग्रंथों पर शोध और अनुसंधान करेगा, इसकी जरूरत है। और इसीलिए उस भाषा के रूप में जो भी उसको जिसको पसंद होगी वो पढ़ेगा। Suneet Butts from Vivekanand Institute of Professional Studies, please ask your question. सर, मैं सादर प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इस सरकार को। हम जिस युग में हैं उसमें दो बड़े स्वर्णिम पड़ाव देखे हमने। एक तो राम मंदिर की आधारशिला जो नींव रखी गई, और एक नई शिक्षा नीति की जो नींव रखी गई सरकार के द्वारा। हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं। हमारा एक छोटा सा शिक्षा संस्थान है सर, और मैं ये विषय इसलिए उठा रहा हूँ सर क्योंकि ऑटोनॉमी की बात की गई इस नई शिक्षा पॉलिसी में कि स्वायत्तता दी जाएगी कॉलेजेस को। हम लोग सर नैक एक्रेडिटेशन होने के बावजूद और हम लोगों को NBA एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। UGC की टीम हमको विजिट करके सर ऑटोनॉमी देके गई हुई है, लेकिन दिक्कत आ रही है कि 2 साल हो गए सर हमको स्वायत्तता दिए हुए कमेटी के द्वारा UGC की, और उसके बावजूद क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट आता है, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा रिलक्टेंस अपना दिखाती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ केंद्रीय मंत्री होने के नाते कि हमारा इस तरीके के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने तरीके से इस नींव को मजबूत करना चाह रहे हैं। और स्वामी जी के नाम पे हमने इस कॉलेज को रखा है, जो कहते थे कि शिक्षा जो है वो हमेशा शुड बी ब्लेंडिंग ऑफ ईस्टर्न विजडम विद मॉडर्न साइंस। सो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप इसके प्रति कोई कदम उठाएं या हमें कोई उसमें राह दिखाएं जिससे हम इसमें आगे बढ़ सकें सर। धन्यवाद। सुनील, आप अलग से भी मेरे को इसको लिख करके भेजिए, लेकिन जैसे आपने स्वयं ही कहा है कि क्योंकि राज्यों का भी विषय है और स्टेट गवर्नमेंट से भी होकर के वो गुजरता है, और UGC की अपनी सीमाएं हैं, वो जिसने अपनी सीमाओं में उन्होंने आपको स्वायत्तता दी है, तो स्वायत्तता क्योंकि ये राज्य सरकारों से भी होकर के गुजरता है, तो मैं ये समझता हूँ एक बार आप मेरे को भेजिए, जो आपके संस्थान की समस्या होगी, मैं कोशिश करूंगा व्यक्तिगत स्तर पर भी उसका समाधान कर सकूं। सर, अगला सवाल है जीशान हायत का। ये topper.com से हैं। ही इज द फाउंडर एंड CEO of topper.com। इनका सवाल रिकॉर्डेड है। If we can please play the video. Hi everyone, my name is Zishan Hayat. I am the founder and CEO of topper.com. Topper is India's leading after-school learning app for K-12, and recently we launched SchoolOS, a complete integrated platform for schools to run online. My question to you, sir, is, as EdTech sector holds immense potential for reforming and changing the educational infrastructure of our country, does the government intend to invite the stakeholders, including startups, to formulate an inclusive and comprehensive policy on the sector? Your thoughts will be very helpful. Thank you. So ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड सवाल जी। मैं समझता हूँ कि जो आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात की है, आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले जिस बात को कहा था कि हम ऐसा एक फॉर्म का गठन जो नई शिक्षा नीति के अंदर NETF जो हम ला रहे हैं, एक ऐसा फॉर्म ला रहे हैं, और उसके तहत हम इसको व्यापक तरीके से देंगे। लेकिन अभी भी डिजिटल, आपको मैंने पहले भी कहा कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर रहे हैं, 1 क्लास 1 चैनल पर हम काम कर रहे हैं। हम स्वयं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा, हम स्वयं प्रभा पर काम कर रहे हैं।
स्वयं प्रभा के 32 चैनलों पर जितना ताकत के साथ और जा सकते हैं, हम लोगों के भी, जो आपने कहा है कि किस तरीके से लोगों के साथ इसको किया जाए। आपने देखा, मैंने अभी कहा कि हम पहले हैं दुनिया का देश होंगे जो 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन की इजाजत दे रहे हैं, जो टॉप हमारे 100 विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो पब्लिक के हैं चाहे प्राइवेट के हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इसका हमने नई शिक्षा नीति में पूरा एक अध्याय दिया है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी तो लगातार इस बात को कहते हैं कि प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो सकता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में हो, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में उसको बहुत ताकत के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं। और जो विश्वविद्यालय उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो फोरम है नेशनल एजुकेशन तकनीकी फोरम, ये जो फोरम है, इस फोरम को और नई शिक्षा नीति में हम लेकर के आए हैं। इसके लिए व्यापक रणनीति बना करके हम इसको विस्तार देंगे। Saurabh Modi from Nirja Modi Schools. Please ask your question. First of all, heartiest congratulations, बधाई हो मंत्री महोदय आपको और प्रधानमंत्री को, जो इतनी विजनरी पॉलिसी आप 34 साल बाद लेके आए। हम आभारी हैं और आने वाला पूरा जनरेशन आभारी रहेगा आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमें ये मार्गदर्शन दिया। मेरा एक सवाल है, आपने काफी उल्लेख करा है इसके बारे में। मेरा सवाल है कि इन पर्टिकुलर, हालांकि तो पूरी एजुकेशन पॉलिसी ही ग्लोबलाइजेशन के प्रति है, लेकिन आपने जो हमें बताया कि इतनी इंटेलेक्चुअल हमारी भारत की, हिंदुस्तान की इंटेलेक्चुअल, दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस थी, उसकी सोच की कदर थी, आज भी पढ़ाई जा रही है। आपको इस पॉलिसी में क्या ऐसा लगता है कि जो हमारी एंशंट सोचें थी वो सब उभर के और आएंगी? पर्टिकुलरली क्या चीज इसमें से आपको ऐसी लगती है? मुझे लगता है कि आपने यदि पूरी पॉलिसी को देखा होगा तो कोई भी चीज तो नहीं छूटी है। हम लोगों ने कहा है कि ये जड़ों पर खड़े होगी। पूरी दुनिया में यदि इसकी खूबसूरती है, जिस काम के लिए हम दुनिया में जाने जाते हैं, जो मानवीय मूल्यों के लिए हम दुनिया में जाने जाते हैं, वो मूल्य परक शिक्षा की आधारशिला पर खड़े होकर के, और जो पीछे का है, जो हमारे पीछे का वैभव है, उसको नवाचार के साथ, अनुसंधान के साथ कैसे करके हम आगे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, जहां सारी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मुझे लगता नहीं कि उससे पहले कोई भी देश पूरी दुनिया में कहां पर पढ़ाई करता था, तक्षशिला और नालंदा से पहले। और ये कहा गया था कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोग तो आते थे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इसकी जो खूबसूरती है, इसमें सबसे पहले तो नेशनल फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट है। पहली बात तो ये वसुधैव कुटुंबकम के लिए हम विश्व मानव बनाएंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः की ये खुशबू दुनिया में सरसाएंगे। ये दूसरा बड़ी बात है। तीसरा, ये लोकल भी होगी, ग्लोबल भी होगी। ये इसमें लोकस भी होगा, फोकस भी होगा, इसमें टैलेंट भी होगा, पेटेंट भी होगा, इसमें कंटेंट भी होगा, रिलेवेंट भी होगा। और ये यदि मैं ये कहूं कि ये 5 आई से ये शिक्षा नीति आप जान सकते हैं कि ये इंडियन होगी, ये भारतीय होगी, ये इंडियन होगी, इंटरनेशनल होगी, इंटरेक्टिव होगी, इम्पैक्टफुल होगी, ये इंक्लूसिव होगी, ये भारतीय भी होगी, ये अंतरराष्ट्रीयकरण भी होगा इसका, ये संवाद को भी लगातार करेगी तो ये प्रभावशाली भी होगी, और ये समावेशी भी होगी। इसमें इक्विटी भी होगी, क्वालिटी भी होगी और एक्सेस भी होगा। ये तो सब कुछ इसकी आधारशिला पर खड़ा होगा। और इसलिए मैं समझता हूं ऐसी शिक्षा नीति, मुझे लगता है कि ये कंटेंट और पेटेंट की ओर जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये अपने में इसकी खूबसूरती होगी। आप देखते रहिए, देश को बदलेगी ये शिक्षा नीति। इसीलिए लोगों में खुशी है, हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
ये जो नई शिक्षा नीति आई और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस नए भारत के निर्माण की वो कल्पना करते हैं, ये जो नई शिक्षा नीति है उसकी आधारशिला बनेगी और निश्चित बनेगी और हम बनाएंगे। Alright, so we'll take one last question from Meera Isaac. वो प्रिंसिपल है कैथीड्रल जॉन कॉन्वेंट स्कूल की। जी जी। उनका रिकॉर्डेड सवाल है सर, if you can please play that. Mr. Pokhriyal, I'm Meera Isaacs, the principal of Cathedral and John Convent School. I have a question. How does the government propose that schools in metropolitan cities with a divergent group of children from different parts of the country in each class teach in the individual child's mother tongue? मुझे लगता है कि जो भाषा का हमने दिया है उसमें राज्यों पर भी पूरी तरीके से छोड़ा है, और जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में बोलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेगा, उसकी खूबसूरती है। यूनेस्को ने भी इस बात को कहा है कि जो उसकी मातृभाषा है उसकी मातृभाषा में किस तरीके से वो आगे अपने को बढ़ा सकता है और यथासंभव वो अपनी भाषा का प्रयोग करे। जो आपका कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों के बच्चों की जो भाषा का जो विषय है, हम लोगों ने द्विभाषी भी रखा है। आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति में, आपने देखा होगा। वैसे तो सभी राज्य अपनी अपनी भाषाओं को प्रमुखता देते हैं और उन राज्यों की बच्चे, ये राज्यों का विषय भी है शिक्षा, उन राज्यों की भाषाएं हैं। यदि वो राज्य अपनी भाषा में, और अधिकांश राज्य अपनी भाषा में पढ़ाते ही हैं, जो उसकी क्षेत्र की भाषा है उसमें पढ़ाते ही हैं, लेकिन तो भी जो आपने कहा कि उसका समन्वय कैसे हो सकता है, वो हम लोग इस शिक्षा नीति में लाए हैं। और एनसीएफ में जब हम इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे तो उस समय भी इसको समाहित करेंगे, लेकिन हम लोग इसको द्विभाषी किताब बनाएंगे। जिस बच्चे को यदि कोई कठिनाई होगी तो उसका भी समाधान है और उसके लिए स्वतंत्रता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। Do we have Snehal Pinto from Ryan School with us? She and N. Ravi, if he's there, if we could wind up with these two questions last. गुड इवनिंग सर, पहले तो बधाई हो आपको, प्रणाम आपको। जी धन्यवाद। Congratulations on a comprehensive education policy, a lot of steps in the right direction, an aspirational plan to say the least. Or we are very happy as a group, Ryan International Group, that has over 300,000 children, to say that vocational education का जो आपने initiate किया है, it's a dream come true, a vision in the real visionary plan. We are looking forward to incorporating that, embed that in our system. So, जैसे आप जानते हैं, in this COVID time में virtual learning has become a new reality, a new normal. Would you all consider having virtual schools to create equitable access to the unreached beyond the cities into the villages, sir? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको ये नीति बहुत अच्छी लगी। और जो हम लोग कक्षा 6 से ही शायद दुनिया का ये पहला देश होगा जो शुरू से स्कूली शिक्षा से हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी पढ़ाएंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्कूली शिक्षा से शुरू करेंगे, ये हमारा पहला वो है। और इसको जो 6वीं से वोकेशनल हम पढ़ाएंगे, इसको हम इंटर्नशिप के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन स्वाभाविक ही है, जो ये स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का जो हमारा अभियान है, उस अभियान को ये पूरा भी करेगा। और जैसे आपने वर्चुअल क्लास के बारे में बोला, जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उसको हमने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि कोशिश करे वो कि इस समय जो आगे हम अभियान लेने वाले हैं वो वर्चुअल क्लास की लैब बनाए, और उसके लिए लगातार देश के सभी शिक्षा मंत्रीगण से और सभी शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशकों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि देश के सभी शिक्षा मंत्री इसको बहुत उत्साहपूर्वक
इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये खुशी की बात है कि हम मिलकर के इस देश की जो शिक्षा का, क्योंकि किसी भी समाज का, व्यक्ति का, परिवार का, राष्ट्र का ये जो आधार होता है उसकी शिक्षा ही होती है। ये शिक्षा रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की, और उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। हम मिलकर के इसको मजबूत करेंगे, पूरे देश के हम सभी राज्यों के साथ निरंतर संवाद भी करेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो वोकेशनल है, हम पढ़ाई के साथ शिक्षणेतर गतिविधियां और ये वोकेशनल, इन तीनों का जो संवाद है, ये जो बीच की इनकी खाई हमने खत्म कर दी। हम रेगुलर इसके साथ मिल करके संवाद करेंगे और इसको हम आगे भेजेंगे। और मुझे लगता है कि जब भी छात्र इसको लेकर के जाएगा वो अपना अच्छा होगा। और अभी जो गाइडलाइन हम कल इसके लिए भी जारी कर रहे हैं कि किस किस तरीके से छात्र इस दिशा में आगे बढ़े। और मेरी आपको शुभकामना। और आप सब लोग मेरे से आज जुड़े हैं और संवाद किया है आपने। मुझे खुशी है कि आप सब लोग काफी अच्छे से आप सहमत भी हैं। और मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये शिक्षा का मुद्दा है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी खूबसूरती का जो खुशबू है उसको बिखेरेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और इसलिए मैंने रितिका से कहा था कि रितिका, इस आयोजन से पूरे देश के अंदर एक और उत्सव का माहौल होना चाहिए कि हाँ कुछ बदलाव आ रहा है। तभी आधा, जब मन से आदमी तैयार होता है तो फिर बदलता है और वो बहुत दौड़ता है, भागता है। वो पूरा मैदान, हमने पहली बार ऐसी शिक्षा नीति आई है। उच्च शिक्षा में भी आप देखिए, विषयों की कोई बंधन नहीं है, जो चाहे उस विषय को ले सकता है। जो वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत भी ले सकता है, वो विज्ञान के साथ दूसरा विषय भी ले सकता है। और इतना ही नहीं, तो यदि वो बीच में छोड़ करके प्रसिद्धि बस जाना चाहता है तो वो ऐसा निराश नहीं होगा। यदि वो 2 साल 4 साल का कोई कोर्स है उसका और 2 ही साल में वो जाना पड़ रहा है उसको, तो 2 साल व्यर्थ नहीं जाएंगे। पहले साल का तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल का उसको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल का उसको डिग्री मिलेगी। और इसमें भी हमने डिजी लॉकर से किया है, क्रेडिट बैंक बनाया। ये एक ऐसा बैंक होगा उसका अपना, यदि फिर लौट करके आना चाहता है और वहीं से वो पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो जब चाहे वो तब आए और अपनी पढ़ाई शुरू करे। छात्रों के लिए पूरी फ्री कर दिया है। भागो, कितना भाग सकते हो, छूट है, स्वतंत्रता है, लेकिन दौड़ना है और योद्धा बनना है। शिक्षा को लेकर के पूरी दुनिया में भारत ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार को आगे, प्रौद्योगिकी को आगे लेकर के जाना है, ये है हमारा मकसद। और मेरी शुभकामना आप सबको। Thank you so much for joining us today, sir. आपने सब सवालों का जवाब दिया है. Thank you so much again. We would like to once again thank our title partner, Vivekananda Institute of Professional Studies, wealth partner, Incred Wealth, associate partners, Jindal Steel and Power, Airbus and IAS Baba. Thank you once again, sir. Thank you so much. धन्यवाद.